automatic या class recording. I think now we are going to record it. So what I want to say कि when I tell you about prose, then remember that कि prose is nothing at all. It's a type of what? It's a type of literature. Yeah, it's the form of literature. And collection of the essay is called prose. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोज कुछ नहीं है बल्कि प्रोज क्या है, एक टाइप ऑफ लिटरेचर है. एज यू फाइंड ड्रामा, एज यू फाइंड नॉवेल, as you find some other things, in the same way you have to know that you find what? You find prose. So what I want to say, what I want to tell you कि prose is nothing at all, but prose is what? Prose is, you will come to know कि जो prose है वह आपका क्या है? It's a type of literature, it means a form of literature या form of literature है. But what happens in prose? When you find that the essays are collected, then it becomes what? It becomes prose. It means prose is nothing at all, it's the collection of essays. So what we should know, we should know what is essay, what is an essay. We should know the definition of essay. हमें डिफिनेशन ऑफ एसे जानना है. प्रोज तो ऑलरेडी हम समझ गए कि प्रोज क्या है, कलेक्शन ऑफ एसेज है. Second important thing, yeah, second important point I want to tell you कि when I talk about essay, then remember that कि the word essay came from the French word essai. जो essay word आया हुआ है या कहाँ से आता है? फ्रेंच वर्ड essai से आता है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें ध्यान में रखना है, जो पहला क्वेश्चन हमें समझने की कोशिश करना है, वो यही है कि जो essay वर्ड आया है ये कहाँ से आया है? द वर्ड essay came from the फ्रेंच वर्ड एसआई या फ्रेंच वर्ड एसआई से आया. दूसरा चीज ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसआई. एसआई का मतलब क्या होता है? एसआई का मतलब होता है कि ट्राई टू राइट समथिंग, कुछ चीज लिखने की कोशिश करना. दिस इज व्हाट, दिस इज एसआई. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यू विल कम टू नो विद these पॉइंट्स कि प्रोज इज व्हाट. प्रोज इज कलेक्शन ऑफ एसेज, नंबर वन पॉइंट. Then number 2 point key, what is essay? The word essay, it refers to what? It refers to short composition. It refers to short composition with on any topic, on any subject matter. You can choose any subject matter, but that is what? That is short composition in conversative language or in prosaic language, not in poetic language. Remember that. What the word I'm using. जो ऐसे होगा वह किसमें लिखा जाता है? ऐसे इज अ शॉर्ट कंपोजिशन इन कन्वर्सेटिव और प्रोजाइक लैंग्वेज. PROSAIC. what I want to say, what I want to tell you कि prose is nothing at all. Prose is what? Collection of essays. Number 1 point. Number 2 point, when I talk about prose, then remember that ki this prose ultimately is what? This prose, it's what? Collection of essays. But essay is what? Essay is ultimately a short composition in prosaic language or conversative language. Second thing, the word essay came from French word essai, ASSAI. जो ये वर्ड है ये कहाँ से आता है? एसआई से आता है. जब आप एसआई को देखते हैं तो रिमेंबर दैट कि दिस पार्टिकुलर एसआई विच इज अ फ्रेंच वर्ड, ASSAI, which is a French word. What does it mean? It means ultimately try to write something. कुछ भी चीज लिखने का प्रयास करना, कुछ चीज लिखना, कुछ चीज लिखने का प्रयास करना. दिस इज व्हाट? दिस इज essay. So the word essay came from French word essai, which means try to write something. Remember that, try to write something. कुछ चीज लिखने की कोशिश करना, कुछ चीज लिखने का प्रयास करना. Then the question is that कि what is the history of essay? When you talk about the history of essay, then you come to know that the essay originated in France, just as sonnet came in Italy. In the same way essay originated in France. जैसे sonnet इटली में आता है वैसे ही आप ये मान के चलिए कि essay कहाँ पर आता है? फ्रांस में आता है. जब essay फ्रांस में आ रहा है तो रिमेंबर दैट इसको लाने वाला पहला आदमी कौन है? यू विल कम टू नो there is an author Montaigne. There is an author Montaigne. Montaigne. What I want to tell you,
Just I want to tell you कि there is an author Montaigne, and that author, particularly Montaigne, says, या Montaigne is known as father of essay. Remember the question? आई एम टेलिंग यू कि आथर एक है जिनका नाम क्या है, मॉन्टेन है, जो फ्रेंच एसेइस्ट है, वो दुनिया के पहले एसेइस्ट है जिन्होंने एसे को लिखा हुआ है. Second important point I want to tell you कि when you come to know about Montaigne, then Montaigne was what type of essayist? What type of essay he wrote? Montaigne was an essayist. He belongs to France, and he has written what type of essay? He has written informal essay. Note down this point कि Montaigne is known as father of essay. He belongs to France. He has written what type of essay? He has written informal essay. इट मीन्स दैट अगर क्वेश्चन आता है कि दुनिया में जो एसे आया उसका नेचर क्या था, दुनिया में जो एसे आया उसका जो नेचर था वह क्या था, दैट वाज, यू विल कम टू नो इनफॉर्मल एसे. इनफॉर्मल एसे दुनिया में पहले आया, उसके बाद के जो एसेज आते हैं दैट इज अनदर थिंग. सो रिमेंबर दैट कि व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स या व्हेन यू कम टू नो कि व्हाट इज एन एसे एंड व्हाट इज द जर्नी ऑफ एसे, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एसे, देन यू विल कम टू नो कि मॉन्टेन को पूरा क्रेडिट दिया जाएगा. मॉन्टेन को पूरा एक 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 सिग्निफिकेंट पोजीशन उनकी थी, एक उनका इंपॉर्टेंस रहा है विच कांट बी इग्नोर्ड एट ऑल, जिसको हम कहीं से इग्नोर नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू शेयर टू ऑल ऑफ यू इज व्हाट इट इज दैट कि जो मॉन्टेन है, मॉन्टेन को यू विल कम टू नो व्हाट, यू विल कम टू नो कि दैट उन्होंने अपने ऐसे में सब्जेक्टिविटी को जन्म दिया है. व्हाट आई वांट टू टेल यू, सब्जेक्टिविटी, बिकॉज आई एम टेलिंग दीज पॉइंट्स कि ऑलरेडी आई हैव गॉन विथ फॉर्म्स ऑफ प्रोज. I conducted a test, then you know it very well ki what type of questions I made for you. You know it very well, and because in today's class I will complete what, in today's class I will complete forms of prose, and very soon I will conduct the second test. If the topic is going to complete, then remember that I will conduct the second test very soon, within 2 or 3 days. Yeah, when you are, when I will be means especially during Deepavali I will conduct the second or third test. You will come to know on Shakespeare, forms of prose, all these things I have taken. So what I'm telling you कि मॉन्टेन को ध्यान में रखना है, एसे को ध्यान में रखना है. देन आपको ये ध्यान में रखना है कि हाउ डू यू फाइंड एसे इन इंग्लैंड. जो एसे है उसका इंग्लैंड में क्या कंडीशन थी. व्हेन यू कम टू नो कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एसे इन इंग्लैंड, देन रिमेंबर दैट कि एसे जो है जो इंग्लैंड में आता है उसका जो सिचुएशन है वह बिल्कुल अलग होता है. जहां पे फ्रांस में इनफॉर्मल एसे आया है, इंग्लैंड में जो एसे आता है वह फॉर्मल एसे होता है. देखिए व्हाट अ डिफरेंस डू यू फाइंड. जैसे अगर आपने देखा होगा जो सोनेट इटली में आता है उसमें क्या होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट होता है, लेकिन जो सोनेट इंग्लैंड में आता है उसमें थ्री क्वार्टेंस और कपलेट होता है. तो यू फाइंड चेंजेस ultimately in the structure of sonnet. Then the same thing you find here, the same thing you find, and what the changes you find ki in France we find informal essay, but in England we find formal essay. And you all know, you all are familiar ki whom I'm talking. Just I want to tell you there is a big name, एक बड़ा नाम है that can't be ignored at all. You all are familiar, and what is, who is that? That is Francis Bacon. Yeah, Francis Bacon. Then we come to know कि Francis Bacon is what, ultimately Francis Bacon, father of English essay. फ्रांसिस बेकन जो है फादर ऑफ इंग्लिश एसे है. और अगर क्वेश्चन ये आता है कि दुनिया का जो फादर है या एसे का जो फादर है वो कौन होगा, मॉन्टेन होगा. तो मॉन्टेन केवल दुनिया के ही फादर, फादर ऑफ एसे ही नहीं है, बल्कि फादर ऑफ एसे भी है और फादर ऑफ इनफॉर्मल एसे भी है. रिमेंबर दैट दोनों पॉइंट, फादर ऑफ एसे भी है और फादर ऑफ इनफॉर्मल एसे भी है. और फ्रांसिस बेकन क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैं और फादर ऑफ फॉर्मल एसे हैं. क्योंकि फादर ऑफ फॉर्मल फॉर्मल एसे का लिखने का जो कैरेक्टर होता है, जो उसका नेचर होता है, वी फाइंड वेयर वी फाइंड इन द एसेज ऑफ, वी फाइंड इन द एसेज ऑफ फ्रांसिस बेकन. तो वेन एवर आई टॉक, you will come to know I always talk about what, I always talk about these two points. जब भी मैं बात करता हूँ मैं इन दो नाम पर जरूर बात करता हूँ. इफ यू मेक द कंपैरेटिव स्टडी, अगर आप इनका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, देन यू विल कम टू नो द पर्टिकुलर
डिफरेंस ऑफ पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन, कि क्या क्या डिफरेंस रहा था। एक फ्रांस में है, दूसरे इंग्लैंड में है, एक आपके इनफॉर्मल एसेइस्ट है, दूसरे आपके फॉर्मल एसेइस्ट है। एक लोग जो है क्या करते हैं कि एक लोग अपने एसे में जो है अपने बारे में बात करते हैं, अपने परिवार के बारे में बात करते हैं, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, सब्जेक्टिविटी। वहीं पर आप बेकन की बात करेंगे, बेकन ने 58 एसेज लिखा हुआ है, और 58 एसेज में नॉट अ सिंगल एसे ही टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ और हिज फैमिली मेंबर्स। बेकन ने अपने किसी एसे में ना अपने बारे में बात किया है, ना फैमिली मेंबर्स के बारे में। वो अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो सबके लिए करते हैं, वो अगर रिवन की बात करते हैं तो सबके लिए करते हैं, वो अगर और किसी टॉपिक को लेकर के बात करते हैं तो सबके लिए बात करते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से, ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दैट मैन, and you will come to know कि he has taken what you find practical wisdom. Just I want to tell you कि बेकन के ऐसे में क्या क्या है, प्रैक्टिकल विजडम है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान। इसके अलावा बेकन के ऐसे में क्या है, एफोरिस्टिक स्टाइल है। एफोरिस्टिक स्टाइल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, गागर में सागर भरना। APHORISTIC, ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है कि एफोरिज्म क्या है, एफोरिस्टिक स्टाइल क्या है। तो एफोरिज्म का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम इफेक्ट इन मिनिमम वर्ड्स, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहना, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन डालना या जगाना। जैसे कि बिहारी के दोहे में मिलता है कि गागर में सागर बनना, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वी फाइंड इन द एसेज ऑफ फ्रांसिस बेकन। तो मॉन्टेन अपनी जगह है, मॉन्टेन से जो क्वेश्चन आना वो अपनी जगह है। एसे वर्ड एसाई से आया है, मॉन्टेन फ्रांस से बिलोंग करते हैं, उनको फादर ऑफ एसे कहा जाएगा। उन्होंने इनफॉर्मल एसे लिखा जिसमें सब्जेक्टिविटी है, वो अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं, अपने रिलेटिव्स के बारे में बात करते हैं, फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, being the student of ultimately what, we all are the aspirants who are preparing for the TGT PGT, then we know it very well कि in our syllabus ना तो मॉन्टेन है, in our syllabus ना तो फ्रांसिस बेकन है, then what is the need to study? Because हमारे सिलेबस में एक चीज है, वह कौन सी चीज है, इन आर सिलेबस देयर इज फॉर्म्स ऑफ प्रोज, और फॉर्म्स ऑफ प्रोज बगैर बेकन के स्टडी के, बगैर बेकन के बात किए हुए कंप्लीट होने वाला है ही नहीं है। यू विल कम टू नो, मैं केवल 4 क्वेश्चन आपको गिनाता हूं, आप खुद कहेंगे कि सर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन बेकन से रिलेटेड यही आता है कि हु कॉल्ड बेकन द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। बेकन को किसने वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा था। वी कम टू नो इट वेरी वेल कि अल्टीमेटली हु वाज दैट, अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप ने ये बात कही थी। तो रिमेंबर दैट इन दिस क्लास आई डोंट वांट टू नो योर रिस्पांस, बट आई एम डिलीवरिंग लेक्चर बिकॉज द होल सेशन इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि आई एम गेटिंग some voices from background, so try to manage it, because if you manage it, the session will be highly fruitful for you also, and for those who are not in this class, yeah, who are absent in this class, so it will be fruitful for them. So what I want to tell you, what I want to say, when you come to know about these points की फ्रांसिस बेकन को, तो फ्रांसिस बेकन में एफोरिज्म है, फ्रांसिस बेकन इनफॉर्मल एसेइस्ट है। फ्रांसिस बेकन की एक और खासियत थी कि उनके अपने में एपीग्राम रहा है, EPIGRAM। एपीग्राम क्या होता है, एपीग्राम वे छोटे स्टेटमेंट या सेंटेंसेस होते हैं जिनको हिंदी में हम क्या कहते हैं, सूक्ति परक वाक्य। और सूक्ति परक वाक्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे बड़ी खासियत थी। या इसके अलावा जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र की कुछ जगहों पर भी हमें देखने को मिलता है। तो एपीग्राम को अगर इंग्लिश में कभी डिफाइन करना हुआ तो उसको कहा जाता है शॉर्ट एंड पिथी स्टेटमेंट। शार्ट माने छोटा, पिथी PITHY, पिथी माने इनडायरेक्ट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो छोटा है, जिसमें हम इनडायरेक्ट वे में बातें कहते हैं या कहने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज व्हाट शॉर्ट एंड पिथी स्टेटमेंट। सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू, सेकेंड पॉइंट आई वांट टू से कि व्हेन यू कम टू नो अबाउट दीज थिंग्स की एफोरिज्म है, एपिग्राम है, प्रैक्टिकल विजडम है, और एक चीज उन्होंने वर्ड यूज किया, लैटिन कोटेशन।
फ्रांसिस बेकन के एसे में लैटिन कोटेशन भी आपको देखने को मिलेगा। फ्रांसिस बेकन के एसे में आर्केइक वर्ड है, ARCHAIC। एंड व्हाट डू यू मीन बाय आर्केइक वर्ड? आर्केइज्म वर्ड बना हुआ है, इज्म उसमें जोड़ा हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस भी शब्द के लास्ट में सफिक्स इज्म जुड़ेगा, सफिक्स का मतलब कि लास्ट में जुड़ने वाले वे अक्षर जिससे नए शब्द को क्रिएट किया जाता है। दो चीजें होती है, प्रीफिक्स, प्री माने जो पहले फिक्स किया जाता है, सफिक्स जो किसी शब्द के लास्ट में। जैसे आर्केइक वर्ड है, उसमें आपने इज्म जोड़ दिया, नया शब्द बन गया आर्केइज्म। जिस भी शब्द के लास्ट में इज्म जुड़ता है, उसका मतलब होता है कि प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग इन एन आइडियोलॉजी, एक नई विचारधारा में विश्वास करना। तो आर्केइज्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसा विचारधारा, एक ऐसी सोच जो आउटडेटेड वर्ड्स का यूज करती है। आउटडेटेड वर्ड, जो वर्ड्स अब अस्तित्व में नहीं है, जिसका इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे पहले हम लोग यू को क्या लिखते थे? दी लिखा जाता था। योर को क्या लिखा जाता था? दाई लिखा जाता था। बट रिमेंबर दैट, अगर आज आप दी या दाई लिखेंगे तो क्या कंप्यूटर आपका लेगा? इसका मतलब कि वे शब्द जो है आर्केइक वर्ड हो गए हैं। तो ऐसे शब्दों को बहुत सिंपल सा आपको मैं बताऊं कि आर्केइक वर्ड वह वर्ड होता है जो कि क्या होता है? आर्केइक वर्ड इज अ टाइप ऑफ वर्ड जो कि आपको क्या कहा जाता है? दैट इज आउटडेटेड वर्ड्स, इररेलेवेंट वर्ड्स। तो बेकन को जब भी स्टडी किया जाएगा, एफोरिज्म, प्रैक्टिकल विजडम, लैटिन कोटेशंस, आर्केइक वर्ड्स, और साथ ही साथ आपका क्या, दैट इज व्हाट, दैट इज द एपीग्राम। एपीग्राम रहा है। और वे बहुत माइनर सब्जेक्ट मैटर को लेते हैं, माइनर सब्जेक्ट मैटर जैसे रिवेंज हो गया, स्टडीज हो गया, लेकिन प्रेजेंटेशन इतना सुपर्ब रहता है कि करीब 25-30 लाइन भी लिखेंगे तो उसमें बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में वो ऐसा लगता है बात हो रही है, निकल करके आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू से, या नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद द एसेज ऑफ बेकन, और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। बेकन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट व्हाट द फ्रेज ही यूज्ड फॉर हिज एसे। उन्होंने अपने एसे के लिए कौन से शब्द का या फ्रेज का यूज किया हुआ है। उन्होंने अपने एसे के लिए वर्ड जो यूज किया हुआ है, दैट वाज व्हाट यू विल कम टू नो। उसको अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो दैट वाज द स्कैटर्ड व्यूज। scattered views in English, in simple language you will come to know. तो दैट वाज व्हाट कि उन्होंने वर्ड यूज किया कि उनके जो अपने वर्ड, जो उनका एसे है, उसको उन्होंने कहा कि इट इज डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। डिस्पर्स, DISPERSED, मेडिटेशन, बिखरे हुए विचार। ये उनके द्वारा यूज किया गया शब्द। उन्होंने खुद कहा कि मेरा जो एसे है वह डिस्पर्स्ड मेडिटेशन है, यह बिखरा हुआ है। और इसीलिए मैंने पहले वर्ड ये क्या यूज किया, पहले स्कैटर्ड। स्कैटर्ड माने बिखरा हुआ, व्यूज माने विचार। उन्होंने कहा कि जो मेरा एसे है यह बिखरा हुआ है, यह बिखरा हुआ विचार है। और इस बिखरे हुए विचार को जो है, जो यहाँ वहां है, जिसको कोई महत्व नहीं देता, उसको मैं एसे का रूप दूंगा। of revenge, of studies, of you will come to know of princess, gardening, so many subject matter he had taken, which is associated, yeah, which is related to our general life. But you will come to know what a super presentation, what the art he has. ऐसा बताते हैं यार, ही स्टडीज फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, सो मेनी कोटेशंस यू विल कम टू नो कि उन्होंने क्या आप स्टडीज में तो इतना बेहतरीन बताएं कि मैं नहीं समझता कि इंडिया क्या वर्ल्ड का कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जहां पे उनका यह ऐसे ना पढ़ाया जाता या ना प्रिस्क्राइब किया गया हो। मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ स्टडीज, स्टडीज के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, पढ़ाई कैसे करना चाहिए। क्या उन्होंने आपको कहीं पे कहा कि मैं आपका फ्रेंड हूं और फ्रेंडशिप मेरी आपसे है, आप पढ़िए या ना पढ़िए, इस तरह की कोई बात नहीं। वो हमेशा ही बिहेव लाइक टीचर। बेकन टीचर जैसा बिहेव करते हैं। ही इंस्ट्रक्ट्स यू, ही टीचेस यू, ही डजंट मेक एनी इंटीमेसी विद द रीडर। वह जो है टीचर जैसा बिहेव करते हैं, वह इंस्ट्रक्ट करते हैं, वह आपसे दोस्ती नहीं करते हैं, बल्कि वह रीडर को क्या करते हैं, बताते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू, आपको क्या करना और आपको क्या नहीं करना।
वो आपसे कोई इंटीमेसी नहीं, वो आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं बनाने की कोशिश करते हैं। यह बेकन की खासियत थी कि 16th सेंचुरी में जब रिनेशा आ रहा है और रिनेशा का इन्फ्लुएंस या रिनेशा का प्रभाव जब वहाँ की पोइट्री पर देखने को मिलता है, वहाँ के ड्रामा पर देखने को मिलता है, शेक्सपियर जैसी पर्सनालिटी जिसको मैं सुबह में पढ़ा रहा हूँ, एडमंड स्पेंसर जैसी पर्सनालिटी जो फेरी क्वीन लिखी हुई है, जो और भी तमाम चीजें इस शेफर्ड कैलेंडर लिखे हुए हैं, उसी दरमियान एसे के फील्ड में एक बड़ा नाम आता है जिसका नाम क्या है, फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन ने टोटल 58 एसेज लिखा और वह 58 एसेज 1597 ईस्वी में पब्लिश हुआ, फिर 1612 ईस्वी में पब्लिश हुआ, फिर 1625 ईस्वी में पब्लिश हुआ। ये भी डेट पूछी जा चुकी है। 1597 में 10 ऐसे आता है, 1612 ईस्वी में 38 ऐसे आता है, फिर उसके बाद 1625 ईस्वी में 10 ऐसे आता है। 38, 10, 48, 10, 58। अगर कहीं पर आपको 59 मिलता है तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि डोंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। कोई 59, 60, 62, 50 नहीं है, केवल आपको 58 ऐसे ध्यान में रखना है। और फिर से मैं डेट बता दूं, 1597, 1612, 1625। 1597 में पहले में 10 ऐसे आया हुआ है, 1612 में 38 आया हुआ है, 1625 में फिर 10 आया हुआ है। तो दिस इज फ्रांसिस बेकन। प्रोज में फ्रांसिस बेकन के अलावा और जहां से क्वेश्चन उठेगा उसमें आपको ध्यान में रखना है, वह एक नाम है जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो जॉन वाइक्लिफ को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। इंग्लिश ऐसे नहीं, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, इसका मतलब उन्होंने छोटे छोटे ऐसे नहीं लिखे। वह अंग्रेजी के पहले राइटर हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया। लैटिन से इंग्लिश में बाइबिल को ट्रांसलेट करने वाले वह जो है इंग्लैंड की पहली शख्सियत रहे। पहले बाइबिल किस में लिखा गया था? लैटिन में लिखा गया था। लेकिन 1382 ईस्वी में उन्होंने ये काम किया कि बाइबल का ट्रांसलेशन लैटिन से इंग्लिश में किया। ही डिड दिस जॉब विच ईयर? ही डिड दिस जॉब इन 1382। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, एक नाम है जिसका क्या नाम है? जॉन वाइक्लिफ। JOHN, जॉन वाइक्लिफ, WYCLIFF। उन्होंने क्या काम किया? जॉन वाइक्लिफ ने 1382 ईस्वी में बाइबिल जो लैटिन में लिखी गई थी उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। ये काम उन्होंने किया, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा गया, ना कि फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा गया। उन्होंने ऐसे लिखा ही, उन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया। और बाइबिल को ट्रांसलेट करने की वजह से उनको 1384 ईस्वी में वहां के पादरी लोग जो है या वहां के जो धार्मिक ठेकेदार थे वह उनको आग के हवाले कर देते हैं। उसकी स्टोरी दूसरी है, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ क्यों उनको आग के हवाले किया गया, व्हाट वाज द केमिस्ट्री, व्हाट वाज द मिस्ट्री बिहाइंड दैट इवेंट, आई कांट एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर। बट रिमेंबर दैट कि अगर आपको एक कहानी बताई जाएगी तो यू विल नेवर फॉरगेट कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था और उस मूवमेंट का नाम था लोलार्ड मूवमेंट। LOLLARD, लोलार्ड मूवमेंट। ही स्टार्टेड अ मूवमेंट एंड द नेम ऑफ द मूवमेंट वाज लोलार्ड। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हु हु वर लोलार्ड्स, लोलार्ड्स कौन थे? तो फॉलोवर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ ने जिस मूवमेंट को चलाया उसको लोलार्ड कहा जाता है। स्पेलिंग मैं फिर से बोल रहा हूं, LOLLARD। और उनकी मौत के बाद उनके जो फॉलोवर्स हुए, उनकी के फॉलोवर्स को क्या कहा गया? लोलार्ड कहा गया। कारण है कि जब जॉन वाइक्लिफ ने बाइबिल का ट्रांसलेट किया तो बिशप लोग ये नहीं चाहते थे, धर्म के ठेकेदार ये नहीं चाहते थे कि जो बाइबिल लैटिन में वो अंग्रेजी में आए और आम आदमी उसकी चीज को जान जाए। दे डिडंट वांट इट, तो इसको चाहते ही नहीं थे। देन व्हाट हैपेंड दैट कि यू विल कम टू नो कि उन्होंने इस काम को किया और उनको जो है क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। नोट डाउन दिस पॉइंट। मैं जॉन वाइक्लिफ के बारे में बात कर रहा हूं कि जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो जॉन वाइक्लिफ से क्या क्या क्वेश्चन आता है? सबसे पहला, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज।
क्योंकि उन्होंने बाइबिल का ट्रांसलेट किया। कब किया? 1382 ईस्वी में किया। उसको ट्रांसलेशन की वजह से उनको आग के हवाले कब किया जाता है? 1384 में उनकी मौत हो जाती है। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, उस मूवमेंट का क्या नाम था? लोलार्ड मूवमेंट था। उसके अलावा एक और क्वेश्चन क्यों कि वह जो है क्या थे, धर्म से जुड़े हुए थे, और रिफॉर्मेशन जो था यह स्पिरिचुअल मूवमेंट था, यह धार्मिक आध्यात्मिक मूवमेंट था। इसीलिए उनको क्या कहा गया? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ना कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा जियोफ्रे चौसर को कहा जाता है। तो यू विल कम टू नो, दो क्वेश्चन ध्यान में रखना है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा जो होगा वह जियोफ्रे चासर होंगे। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जो होंगे वो जॉन वाइक्लिफ होंगे। अब यहीं से मैं दो क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देता हूं। इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा जो है जॉन मिल्टन। इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा जॉन मिल्टन। एंड इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जॉन बनियान। You will come to know these 2 points. Evening Star of Renaissance, John Milton, and Evening Star of Reformation, John Bunyan. So what I want to say कि you get this journey. It's my request to Sonali. It's my request to Sonali Malik ji. I'm getting a voice from your background, so please manage it anyhow. Yeah. So what I was telling you कि how you can understand. तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, वो किसको ध्यान में रखना है? दैट इज जॉन वाइक्लिफ। फिर मैंने आपको किसके बारे में बताया? फ्रांसिस बेकन के बारे में बताया। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज जब वहां से वह चीज आगे बढ़ती है तो प्रोज में जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वह है जॉन मिल्टन से रिलेटेड। जॉन मिल्टन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट कि जॉन मिल्टन ने एक किताब लिखा था जिसका नाम है एरियोपैजिटिका। वह किताब 1644 ईस्वी में आती है, एरियोपैजिटिका। और उस किताब की खासियत ये थी कि वह किताब जो है प्रेस को जब बैन कर दिया गया था, आपका चार्ल्स फर्स्ट के जमाने में प्रेस पर बैन लगा दिया गया था, लिखने की आजादी पर, पढ़ने बोलने की आजादी पर बैन लगा दिया गया था। तो मिल्टन गॉट एंग्री एंड ही रोट अ बुक इन प्रोजाइक लैंग्वेज, एरियोपैजिटिका। और आप देखेंगे वो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और ये घटना कब की? 1644 ईस्वी में। तो जब आप जॉन वाइक्लिफ की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा वो मैंने बताया। आपको फ्रांसिस बेकन पे बात करनी क्या है वो मैंने बताया। अब मैं आपको कहाँ पे लेके चल रहा हूँ? जॉन मिल्टन पर। तो जॉन मिल्टन पर प्रोज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह एरियोपैजिटिका एक किताब है जो 1644 में उन्होंने लिखा। और उन्होंने उस किस क्या बात उन्होंने किया? फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू से, एंड व्हाट इज दैट थिंग? remember that कि when you come to know about these points, especially जॉन मिल्टन, उसके बाद एक और बड़ा नाम आता है, वह है जॉन बनियान का। जॉन बनियान जो है, जिसको अभी मैंने एड्रेस किया था कि जॉन बनियान इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, उन्होंने एक किताब लिखा पिलग्रिम्स टू प्रोग्रेस। एंड आई थिंक डेट इज 1678, 1678 ईस्वी में आई हुई है। इवन यू कैन चेक आल्सो, हो सकता है कि डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो, लेकिन मुझे जहां तक याद है शायद 1678 है। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, अभी भी देखिए कि जो जॉन बनियान है, जॉन बनियान को जो किताब है जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, उस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या है? रिलीजन। लेकिन जॉन मिल्टन में रिलीजन नहीं है, जॉन मिल्टन में पॉलिटिकल इशू रहा है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्रोस की जर्नी आपको कहां पे सीधे ले जाएगी? सीधे आपको 18वीं शताब्दी में, जिसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था कि 18th सेंचुरी वाज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। जो 18वीं शताब्दी थी, यह जो सेंचुरी थी, यह कौन सी सेंचुरी थी? प्रोज और रीजन की सेंचुरी थी। और उस समय आपको कौन सा आपका प्रोज मिलेगा? पीरियोडिकल ऐसे।
ये जैसे अभी मैंने क्या बताया था, फॉर्मल एसे किससे रिलेटेड था? फॉर्मल एसे बेकन से रिलेटेड था। इनफॉर्मल एसे किससे रिलेटेड था? मॉन्टेन से रिलेटेड था। फॉर्मल एसे को आर्टिकल भी कहा जाता है। जो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल पेज आता है जिसको आप आर्टिकल कहते हैं, वह फॉर्मल एसे होता है। राइटर उसमें अपने बारे में नहीं बताता, वह किसी टॉपिक को, सामाजिक मुद्दे को लेकर के न्यूट्रल होकर के अपनी बात रखता है। सो मैं आपको बता रहा हूं कि हिस्ट्री ऑफ प्रोज इन इंग्लिश लिटरेचर, ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक जगह खड़ा कर दिया। मैं पूरा आपको उसकी जर्नी, पूरा उसका फ्लारिश, पूरा उसका पूरा चीज एक लेक्चर में दे देना चाहता हूं, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि क्या क्या क्वेश्चंस आता है। ताकि आपको ये लगे कि whenever you get this video, whenever you attend, if you are attending this lecture, here you are, then you will come to know कि रियली में ये कितना आपके लिए फ्रूटफुल है कि एक लेक्चर में पूरा प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आपको नावल एक जगह मैंने दिया, उसका टेस्ट कंडक्ट कराया, ऐसे ही फॉर्म्स ऑफ प्रोज को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। 18वीं शताब्दी को मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि इट वाज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। और रियली में वह गोल्डन एज, अगर कभी क्वेश्चन आता है गोल्डन एज ऑफ प्रोज क्या था, तो गोल्डन एज ऑफ प्रोज 18th सेंचुरी था, 18वीं शताब्दी रहा। वहां पीरियोडिकल ऐसे आया। पीरियोडिकल ऐसे क्यों आया, क्यों कहा कि उसको पीरियोडिकल ऐसे? कारण यह है कि वह जो ऐसे था, या तो एक हफ्ते में पब्लिश होता था, या 15 दिन में पब्लिश होता था, या एक महीने में पब्लिश होता था। वहां के न्यूज़पेपर्स में, वहां की मैगजीन्स में, वहां के जर्नल्स में आता था। और बड़ा नाम जिसे मैं गिनाना चाहूंगा, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिशन, जोनाथन स्विफ्ट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये 5 नाम हर आदमी को ध्यान में रखना चाहिए जो 18वीं शताब्दी के प्रो से रिलेटेड रहे। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द नेम। आप सारे लोग पढ़े हुए हैं, वाकिफ है, और अभी जब मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी आपको ही मिलेंगे। रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिशन, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, जोनाथन स्विफ्ट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इन लोगों ने जो जर्नल निकाला, उस जर्नल के नाम बड़े फेमस हैं। द आइडलर, द रैम्बलर, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। आइडलर की स्पेलिंग IDLER, रैम्बलर की स्पेलिंग RAMBLER, बाई डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये 2 जर्नल। रिचर्ड स्टील ने, जोसेफ एडिशन ने मिलकर के 2 जर्नल निकाला था, अगर आपको याद होगा, द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर। 1709 से 1711, 1712 से 1714। द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर। जब मैं आपको पीडीएफ मैटर सेंड करूंगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे वो करेंगे। बट इन दिस क्लास यू हैव टू एंजॉय लेक्चर। You should try to get the beauty of the lecture ki how you are getting. I'm just, there is a discourse on the development of English prose, तो एक लेक्चर में इंग्लिश प्रोज आपको पूरा कवर हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो एसे था, जो पीरियोडिकल एसे था, ये पीरियोडिकल एसे उस समय मिडिल क्लास की जिंदगी को बताता है, उस मिडिल क्लास के आदमी के बारे में बात करता है। और इवन जो है, जोसेफ एडिशन ने तो ये तक कहा था कि मेरे ऐसे का सब्जेक्ट मैटर आदमी के घर के किचन से शुरू होता है और कॉफी हाउस तक जाता है। कॉफी हाउस जहां बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठते थे, अब बातें करते थे, कंटेम्प्रेरी सिचुएशन या इवेंट्स पर जो है बात करते थे। तो कहते हैं मैं घर के अंदर क्या हो रहा है किसी आदमी के, वहां तक उसकी फैमिली लाइफ को लेकर के सोसाइटी में मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माई एसे बिलोंग्स फ्रॉम कॉफी हाउस टू किचन, या फ्रॉम किचन टू कॉफी हाउस। जब आप इस चीज को जानते हैं तो एक और क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना चाहिए, वह ये है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अंग्रेजी की पहली डिक्शनरी लिखा, और वह डिक्शनरी 1755 ईस्वी में पब्लिश होती है। 1755 ईस्वी में उनको फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी भी कहा जाएगा। और उन्होंने एक क्रिटिकल एसे लिखा था प्रोज में। प्रोज का मतलब कि प्रोजाइक लैंग्वेज में था, और उस क्रिटिकल एसे का नाम था प्रीफेस टू शेक्सपियर, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर की ट्रेजी कॉमेडी को एडमायर किया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि हु रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर। प्रीफेस टू शेक्सपियर वाज रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। उसमें वो एडमायर करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। जब आपका जर्नी यहां से शुरू होती है, रोमांटिक एज में आप पहुंचते हैं, तो रोमांटिक एज में आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड याद रखना चाहिए, वह प्रोज में लिखा गया है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड जो 1800 ईस्वी में आता है।
जिसमें उन्होंने पोएटिक डिक्शन के बारे में बात किया है। आप और आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा नाम आता है एस.टी. कॉलरिज का। एस.टी. कॉलरिज ने एक किताब लिखा था बायोग्राफिया लिटरेरिया। 1817 ईस्वी में वह किताब आई थी और उस किताब में उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिया था, इमेजिनेशन और फैंसी का। तो मैं आपको एज वाइज लेके चल रहा हूं, क्वेश्चन कहां से आता है, क्या इंपॉर्टेंट है। जब भी आप विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे कि वर्ड्सवर्थ का क्या कोई कंट्रीब्यूशन प्रोज में रहा है, तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड, लिरिकल बैलाड अकेले पोइट्री का मामला है, लेकिन जैसे ही आप प्रीफेस जोड़ेंगे तो तुरंत उनका कंट्रीब्यूशन किसमें आ जाएगा, प्रोज में आ जाएगा, जिसमें वो पोइटिक डिक्शन की बात करते हैं, रस्टिक लैंग्वेज की बात करते हैं और कहते हैं पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, और कहते हैं पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जब आप आगे बढ़ते हैं, मैंने किसका नाम लिया, एस.टी. कॉलेज का, सैमुअल टेलर कॉलेज। सैमुअल टेलर कॉलेज एक बड़ा नाम है, और जो सैमुअल टेलर कॉलेज रहे उन्होंने जो किताब लिखा बायोग्राफिया लिटरेरिया, वो 1817 ईस्वी में आती है। आप क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, ये पूछा गया है कि उसमें उन्होंने किसके बारे में बात किया हुआ है, फैंसी और इमेजिनेशन के बारे में बात किया है, चैप्टर नंबर 13 में। 13 और 14 में उन्होंने ये बताया कि फैंसी क्या है, इमेजिनेशन क्या है। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि हु मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन, एस.टी. कॉलेज ने किया हुआ है। किस किताब में किया, बायोग्राफिया लिटरेरिया में किया हुआ। किताब की डेट क्या, 1817। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू कि जब आप और आगे बढ़ते हैं, खासकर विक्टोरियन एज में आते हैं, तो वहां पे पूरा का पूरा भरमार है एसेइस्ट का। लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने क्या किया था, एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी। लॉर्ड मैकाले के अलावा एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड है। चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 1859 ईस्वी में आई थी। तो ये कुछ नाम है जो हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको और ध्यान में रखना है, एक नाम है जॉन रस्किन, जिन्होंने मॉडर्न पेंटर्स लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है एक और वर्क है मैथ्यू अर्नाल्ड का कल्चर एंड एनार्की, उस पर उनका रहा है। सो यू विल कम टू नो दिस इज द जर्नी। विक्टोरियन एज में और बहुत सारे रहे, मैं तो एक एग्जांपल ही दे रहा हूं। जब आप मॉडर्न एज की ओर बढ़ते हैं तो मॉडर्न एज में आपको एक बड़ा नाम है टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट ने क्या क्या लिखा, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, मेटाफिजिकल पोएट्स, यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सैक्रेड वुड। ये टी.एस. एलियट का कंट्रीब्यूशन प्रोज में रहा। तो मैंने जो अपने लेक्चर शुरू किया था फादर ऑफ एसे मॉन्टेन से लेकर के आपको टी.एस. एलियट तक लेके गए, और इस लेक्चर में मैंने तीन चीजें बताई हैं। पहला पॉइंट, एसे क्या है, एसे के तीन टाइप्स बताए हैं। फॉर्मल एसे, जिसको हम आर्टिकल भी कहते हैं, जिसमें एक बड़ा नाम है आपका फ्रांसिस बेकन। फिर दूसरा मैंने इनफॉर्मल एसे बताया, जिसकी शुरुआत मॉन्टेन ने किया है। कहां से किया है, फ्रांस से किया हुआ है। फिर उसके बाद जो है मैंने आपको ये बताया कि फ्रांसिस बेकन, जॉन वाइक्लिफ, जॉन मिल्टन, जॉन बनियान, 18th सेंचुरी में रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और अगर आप आगे चलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उसके बाद एस.टी. कॉलरिज, फिर उसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन रस्किन, टी.एस. एलियट। बीच में मैंने कुछ स्किप किया है, लेकिन वो सब आपको नोट्स में मिलेगा, उनकी किताबों का नाम है, उनकी चीजें हैं, यू विल कम टू नो। लेकिन इतने से ही प्रोज आपका पूरा नहीं हो जाएगा। फॉर्म्स ऑफ प्रोज में और भी चीजें, ये तो अभी तक ऐसे की बात हो रही थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी एंड व्हाट इज बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी भी आदमी के जीवन का इतिहास जो उसने खुद लिखा है, दैट इज द ऑटोबायोग्राफी। ऑटो माने सेल्फ, बायो माने लाइफ, ग्राफ माने पिक्चर। मैंने ऑटोबायोग्राफी को तीन शब्दों में बांटा, ऑटो माने सेल्फ, बायो माने लाइफ, ग्राफ माने पिक्चर। अपने जीवन का पिक्चर आपने खुद उतारा है, खुद आपने लिखा, उसको क्या कहा जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। इसके अलावा आपको इस पे कुछ नहीं तैयार करना, उदाहरण आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ।
कमला दास पीजीटी में प्रिस्क्राइब्ड है, दैट इज शी इज इन योर सिलेबस। उनका एक वर्क है माई स्टोरी। उसके बाद आपके जीवन का खुद भी एक जो आप लिखेंगे या जो आप समझ रहे हैं वो ऑटोबायोग्राफी ही है। इसी से रिलेटेड एक है बायोग्राफी। बायोग्राफी जो होता है उसमें ये होता है कि आपके जीवन का इतिहास खुद आप नहीं लिखते, दूसरा कोई लिखता है, उसको बायोग्राफी कहा जाता है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन नॉट रिटन बाय हिमसेल्फ बट अदर्स। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की जो बायोग्राफी रही है जेम्स बॉसवेल ने लिखा है। सो यू विल कम टू नो विद दीज थिंग्स। एक इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो यूजीसी नेट में आया हुआ है, जो मुझे लगता है हर आदमी को पता होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, दैट इज द हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी मैं स्पेलिंग बता रहा हूं, HEGIO, हेजियोग्राफी, GRAPHY। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेंट्स। जो सेंट होते हैं जब उनकी लाइफ हिस्ट्री को लिखा जाता है तो उसको हेजियोग्राफी कहा जाता है। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, हेजियोग्राफी। In a very simple and lucid language, I want to make clear types of essay, types of prose, and also the history of or the journey of prose from John Wycliffe to T.S. Eliot। उसमें मैंने आपको ऑटोबायोग्राफी बताया, बायोग्राफी बताया, हेजियोग्राफी बताया। प्रोज का एक और टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं। एंड यू विल कम टू नो कि डायरी क्या है। डायरी इट्स अ टाइप ऑफ प्रोज इन विच यू फाइंड द डे टू डे रिकॉर्ड। प्रतिदिन, डायरी एक दिन में नहीं है, प्रतिदिन आपका जो लाइफ स्टाइल रहा, क्या घटित हुआ क्या नहीं घटित हुआ, वह क्या कहा जाता है। जब उस रिकॉर्ड को आप मेंटेन करते हैं तो वह डायरी होता है। और डायरी के लिखने वाले को क्या कहा जाता है, डायरिस्ट कहा जाता है। डायरी, डायरिस्ट। वन हु राइट्स डायरी इज कॉल्ड डायरिस्ट। एंड व्हाट इज डायरी, डायरी इज डे टू डे रिकॉर्ड, डे टू डे रिकॉर्ड। और इसमें मैं नाम बताना चाहूंगा, दो बड़े डायरिस्ट रहे। एक का नाम है सैमुअल पीप्स, जो कि कब आते हैं, 17वीं शताब्दी के हैं। और एक जो है का नाम है जॉन ईवलिन। आप ऑलरेडी इनसे वाकिफ होंगे, लेकिन आपको इस लेक्चर में सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी। सैमुअल पीप्स एंड जॉन ईवलिन। सैमुअल पीप्स ने डायरी लिखा, उन्होंने लंदन फायर का जिक्र किया। जॉन ईवलिन ने लिखा। तो ये दो नाम आपको कहीं कहीं से नहीं भूलना है। ब्रिटिश डायरिस्ट है, बड़े डायरिस्ट है वो। डायरी के बाद और अगर किसी को कुछ जानकारी होना चाहिए, दैट इज द मीमोयर। MEMOIR, मीमोयर। मीमोयर को हिंदी में संस्मरण कहा जाता है। और संस्मरण क्या होता है, या प्रोज का एक टाइप होता है। इसमें आप क्या करते हैं, अपने बारे में कम बात करते हैं, आपके जीवन में जो लोग आए हैं, जहां पे आपने ट्रेवलिंग की है, जो घटना हुआ है, जिस प्लेस को आपने विजिट किया है, उसके बारे में आप ज्यादा बात करते हैं। याद होगा कि परवेज मुशर्रफ एक नाम है, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उनकी जो है मीमोयर आया हुआ था, पेंगुइन से आया था। और एक हफ्ते में कई लाख प्रतियां बिकी हुई थी। ऐसे ही बहुत सारे मीमोयर जो है लिखने वाले लोग रहे हैं। तो ये जो मीमोयर है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, आपको अ, संस्मरण कहा जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द मैं जिक्र करूंगा, ट्रेवलॉग। TRAVELOGUE, ट्रेवलॉग। एंड व्हाट इज ट्रेवलॉग, यात्रा वृत्तांत। इन हिंदी दैट इज कॉल्ड यात्रा वृत्तांत। जब आप किसी जर्नी पर जाते हैं, जर्नी आपकी जहां से शुरू हुई, जहां आप गए, उस यात्रा के बीच में आपके साथ जो चीजें हुई, जो आपने देखा, जो चीजें हुई, जब आप उसका मेंशन करते तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रेवलॉग कहा जाता है। I'm just giving the example. If you go from Kanpur to Banaras, if you come back from Banaras to Kanpur, if you go in another city, what is the experience you get? That will be address, that will be known, how that will be known as travelogue. Except it, what other things? ये पूरा का पूरा। इसके अलावा नॉवेल उसी का हिस्सा है जो प्रोज में भी होता है, वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। शॉर्ट स्टोरी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि शॉर्ट स्टोरी भी प्रोज का एक टाइप होता है। लेकिन शॉर्ट स्टोरी में यू विल फाइंड नरेशन, कहानी सुनाई जाती है।
और जब कहानी को शॉर्ट स्टोरी में सुनाया जाता है, तो उसमें लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं और लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल के बीच में यही अंतर है। मैंने आपको पहले भी अपने लेक्चर में बताया था कि शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल के बीच का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वह है इकोनोमाइजेशन ऑफ वर्ड्स। इकोनोमाइजेशन ऑफ वर्ड, शब्दों को क्या किया जाता है, किफायत की जाती है। कम से कम शब्द, कम से कम कैरेक्टर रख करके हम अपनी बात करते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी कोई बड़ी चीज नहीं। यू ऑल आर फेमिलियर, यू ऑल आर नो मेनी टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, यू हैव ऑलरेडी रेड, सो यू विल कम टू नो। शॉर्ट स्टोरी से जो छोटा होता है उसको टेल कहा जाता है, वह भी प्रोज ही होता है, प्रोज का एक फॉर्म होता है। TALE, छोटी कहानी। मैं पूछ वाला स्पेलिंग नहीं बता रहा हूँ, TAIL, TALE। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोज बता दिया। टाइप्स ऑफ प्रोज में मैंने आपको शॉर्ट स्टोरी बताया, टेल बताया, मीमवायर बताया, ट्रेवलॉग बताया, ऑटोबायोग्राफी बताया, बायोग्राफी बताया, डायरी मैंने आपको बताया, एसे बताया, फॉर्मल एसे बताया, इनफॉर्मल एसे बताया, पीरियोडिकल एसे बताया, जितने इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उन सबको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं इस सेशन को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। जैसा मैडम ने कहा कि थोड़ा-सा ब्रेक देना चाहिए, मैं भी थोड़ा-सा ब्रेक ले लूँगा। तो आई विल बी अगेन हियर, अगर टाइम परमिट करेगा। अगर 8 बज गया होगा तब तो नहीं होंगे, अगर 8 नहीं बजा होगा तो आई विल बी हियर, बिकॉज़ व्हेन आई एम डिलीवरिंग लेक्चर आई डोंट सी कि व्हाट द टाइम अल्टीमेटली। तो आई हैव टू just bind up this session. I just want to know about only one or two person can give me the feedback ki how do you find this session, how do you find this session. Good evening. Yeah, Pratigya. Yeah, you can give, you can give. Yeah, 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 yeah. And one thing I one yeah, madam, one thing I would like to inform to you ki that's my alma mater and I did my PhD under the supervision of renowned Professor Lakshmi Raj Sharma sir. Yeah, 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 yeah,
Yeah. जी। या या थैंक यू मैडम फॉर योर ब्यूटीफुल या okay. Yeah, it's a very good thing that I found such a beautiful and lovely. Yeah, it's a very good thing that you are here and we ultimately also need. I think, okay, madam. मैडम वन थिंग आई वुड लाइक टू चेक इंटरप्ट यू इन दिस सेशन बिकॉज जो मेरी बैटरी है मात्र 15% ही बची हुई है तो मैं सोचता हूँ पहले मुझे लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए एंड या या Yeah, and thanks for your beautiful comment. Again, we will be here, but not today. Tomorrow at 8 a.m. So I expect all the people who are just in group, they can just send the feedback. How did they find this session? Okay. Okay.